Hello and welcome back to your channel Physics Safari. I hope you guys are doing good and studying well. My name is Abhishek and today we are on to the third video lesson on the rotational motion. So far I've spoken about the basic fundamental of the rotational motion, torque in its very fundamental form, angular momentum, and in the previous video lesson I've started the moment of inertia. Today's entire lesson is going to be dedicated towards the moment of inertia only. All good? So fatafat, we're going to start. Just a quick recap of what we have done in the previous session. We know that moment of inertia is all about mr square, where it is defined about an axis. Moment of inertia existence is all about its axis. Without axis, moment of inertia will not be existing. All good? So if I have, let's suppose I want to find the moment of inertia about this axis, and the mass is here at any distance, let's suppose r from the axis of this axis, then the moment of inertia of this mass about this axis should be given as mr square. So basic batein we have already discussed in the previous video lesson. All good. Today we will be dedicated more towards finding the moment of inertia of certain specific shapes, or which is going to be very much fundamental और काफी काम आएगा आगे के studies में. तो that is what we are going to do today. All good. तो चलिए फटाफट एक बात मैं आपको समझा देता हूँ कि I is equals to mr square, which means it not only depends upon the distance r, but also depends upon the mass, which means it depends upon the mass distribution. अगर mass एक्सिस से दूर है, moment of inertia will be higher. ये मैंने previous class में बताया, फिर से बता रहा हूँ. Let's suppose I myself, I have a certain amount of mass, okay, and if I just spread my hands, then the mass distribution is going to go away from the axis. Let's suppose my axis is, it's going to be mostly passing through the, you can say from the nose. That's how the axis will be passing from the center of the body, because mass is more or less equally distributed on the both end side of the nose. All good. So if I stand like this, then entire mass will be very much close to the moment axis of rotation, you can say that. But if I just spread my hands, then you can see that a bit of mass is going away from the axis, तो moment of inertia इसका ज्यादा हो जाएगा ऐसे केस में, है ना. अगर आप ऐसे खड़े हो, आप नोटिस करोगे when you might have seen the dance performance on the you can say that ice. So when they want to increase the speed, they will just fold themselves like that, because that will be the case in which the resistance to the motion, rotational motion, would be less. So when they want to increase the speed, they're going to be very much into this shape, this posture, and when they want to slow down, they're going to spread your hands and they would slow down. इतनी पता बात आपको है ना, बढ़िया. तो इसी से मिला जुला बात आपको बताते हैं, just to understand. Let's suppose if you're standing like this with your hands spread, and in this case having mass m, let's suppose moment of inertia is I1, and in the second case the same person, if he is standing with his hand very much close to his body, having moment of inertia I2, then I1 is going to be more than I2. All clear? So if I'm talking about a discrete particle, bachcho, let's suppose this is the axis about which I have to find the moment of inertia, and I have, let's suppose, masses somewhere here, anywhere, like that. Let's suppose m1, m2, m3, and let's say m4 at a distances of r1, maybe r2, let's say r3, and r4. Okay, one more thing I want to tell you, moment of inertia is neither scalar nor vector. It is a tensor quantity. Moment of inertia जो है वो tensor quantity. It is a tensor quantity. But we're going to treat this as a scalar quantity. इसको हम स्केलर की तरह ट्रीट कर लेंगे for our benefit, for our calculations. But actually में reality में ना ही स्केलर है और ना ही वेक्टर है. So why I'm saying this, if I want to find the moment of inertia of all these bodies, let's suppose net moment of inertia, I'm going to find the moment of inertia because of 1, mass 2, and mass 3, and so on mass 4, and I'm going to add them up. ऐसा करने से मेरे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. ये बात आपको पता होना चाहिए. ठीक है, एक बात ये हो गई. दूसरी बात जो आपको समझना चाहिए, लेट्स से कि आई हैव एन एक्सिस एंड अबाउट दिस आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक मास बच्चे यहां पर रखा हुआ है. लेट्स सपोज दिस इज एट मास m at a distance, let's suppose r. Let's suppose this has a moment of inertia I1. What I did is I shifted it. मैं इसको नीचे exactly parallelly यहाँ पे shift कर देता हूँ. ठीक है. Let's suppose a distance of d from this point, and the distance still remains same. Let's suppose mass still remains same. Now in this case we have the moment of inertia I2. My question to you, will I2 be more than I1? Will I2 be equals to I1? I2 is more than I1, or I2 is lesser than I1? इतनी सिंपल सी बात है, आपको बताना है.
Let me check if it is coming that in the screen. Yes, almost to the boundary. You have to tell me whether the moment of inertia this relation से कौन सा सही होगा. तो okay, एक बात समझते हैं. Moment of inertia is defined as how? It is defined as mr square. In this case, mass is m and distance is r. Perpendicular distance is r. Having moment of inertia, let's say I1. In this case, has the distance changed from the previous case? Na ji na. Has the mass changed? No. If mass and the distance has not changed, then why the moment of inertia should change? अगर distance भी वही है, mass भी वही है, तो moment of inertia change क्यों होगा? It means even I2 should also be equals to mr square, which means I1 should be equals to I2. बहुत ही basic बात है. But यहाँ से एक बहुत ही important result सामने आता है that if mass is shifted parallel to the axis, without changing the perpendicular distance from the axis, moment of inertia remains unchanged. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होना चाहिए और इसको आप अपने नोट में हैशटैग मार्क कर दो, स्टार मार्किंग कर दो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों ये. एंड आई एम गोना बी शोइंग यू व्हाई इट इज सो डैम इंपॉर्टेंट. आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ना. सो दिस कुड बी यूज्ड क्वाइट इंटेंसिवली टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. बहुत जगह आपको ये काम आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं उसको आप मेंशन कर लो, हैशटैग मार्क में इंपॉर्टेंट है वो, है ना. अच्छी बात है. देखो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, यू माइट हैव सीन दैट. लेट अस से दैट एक ऐसा कुछ कोन है, दिस इज अ कोन, ठीक है जी, एक हमारा ऐसा कोन है. एंड ठीक है, नाउ आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, dividing this cone exactly in two parts, having mass m and the radius of the base is r and height इसका मान लो h है. So these are the dimensions of this cone. I want to find the moment of inertia about this axis. So ठीक है, कुछ भी moment of inertia अपने को मिल गया. Let's suppose the moment of inertia about this axis is I. हमने मान लिया moment of inertia I मान लो about this axis. What is done now is I actually cut this from this point and this line is parallel to the base axis. इसको parallelly हमने कट कर दिया. तो कट करने से क्या हो गया? This part would now be somewhere like this, you know. ये हमारा कट कर दिया गया है, ऐसे हो जाएगा. This is gonna be like this, and this will take a shape of a frustum. आपने नाम सुना होगा इसका, इसको बोलते हैं frustum. This is called as frustum, you know. Now this portion which was cut, if I fit that over here, इसको मैं यहाँ fit कर दूं, इसको if I fit it over here, below it, इसको इधर fit कर देता हूं मैं. आप ले लो ऐसे, टिक 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 टिक, and here we have. ये जो पोर्शन था, मान लो इसको 1, the 1 is now here. इसको मैंने उल्टा इसको फिट कर दिया. Now about the same axis, what would be the moment of inertia? That is your question. About the same axis, what would be the moment of inertia? चलो वीडियो पॉज करो, सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी एक्सिस के अबाउट, द सेम एक्सिस सेम है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. ध्यान रखना बेसिक बातों का, और जो हमने जस्ट अभी आपको बताया है उस बात का दिमाग में रखना. अच्छी बात है. अब देखो, when I cut this part and put it here, has the distance, perpendicular distance of, let's suppose एक पॉइंट हमने P मान लिया, इस पॉइंट का डिस्टेंस let's suppose R1 है बच्चों, तो the same point P is here, इसका distance still is going to be R1. That is not going to change. Agree? It means the distance, perpendicular distance of each and every point or each and every point mass of this part did not change. वो सबका सब change नहीं करता है. जो भी distance इस केस में था, वही distance इसी केस में भी है. All good? Whatever distance, all the masses of this frustum of this part was there from the axis. The same distance is there from this axis. देखो कुछ भी वर्टिकल आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चेंज नहीं हुआ है. एंड इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि पैरेलली शिफ्ट हो रहा है. इट इज शिफ्टेड पैरेलली. तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम आल्सो वुड रिमेन सेम एज इट वाज बिफोर. इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में चेंज नहीं होगा. बहुत अच्छा बात है. चलो एक और बात को देखते हैं. लेट अस सी सच मोर एग्जांपल.
लेट्स से इफ आई हैव अ probably cylindrical shell, मतलब कि ये शेल है ऐसा कुछ है ना, cylindrical shell. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज लेट्स से आई. हम चर्चा करेंगे कितना है, दैट आई विल डिस्कस. हैविंग रेडियस r, इफ आई कंप्रेस इट, ऊपर नीचे से मैंने इसको कंप्रेस कर दिया तो दिस इज गोइंग टू बी अ रिंग, एक रिंग बन जाएगा, राइट. मास विल रिमेन सेम, मास भी सेम रहेगा उसका, एंड द रेडियस विल आल्सो रिमेन सेम. तो बेसिकली इफ आई कंप्रेस इट, ऊपर से फोर्स लगाया, नीचे से फोर्स लगाया, मैकेनिज्म इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न, वो कैसे भी हमने कर लिया, बट इसको कंप्रेस करके क्या बना दिया हमने, एक ऐसा रिंग बना दिया, having same mass r m and having same radius r. Now will the moment of inertia about this axis change? Change करेगा क्या? नहीं, because each and every mass which earlier were at a distance of r will still at the same distance r पे ही रहेगा, वो तो distance change हो नहीं रहा है. So the perpendicular distance is not changing. It means the moment of inertia will not change. बहुत आसान तरीका है और this is going to be very very effective in solving a lot of problems going forward. All good guys? So the moment of inertia would still remain the same. So when you move the masses parallel to the axis, okay, without changing the perpendicular distance from the axis, moment of inertia change नहीं करता है. इस बात को आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो. All good? चलिए अब थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ ऐसे वेल नोन शेप को देखते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता होना चाहिए. तो few of them I'm going to derive, जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको डिराइव कर दूंगा, और कुछ डेरिवेशंस हम आगे चल के सीखेंगे जब हम कुछ थ्योरीज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जान लेंगे, और कुछ आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा, आप उसको याद कर लेना. मेक अ चार्ट, एक आप पेपर में लिख लो, याद कर लेना, एंड ट्राई आउट ऑफ देम अ लॉट ऑफ देम गोना बी वेरी मच सिमिलर और इक्वल दिखेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. उनको आप एक प्लेस पे लिख लो सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं हो, है ना. हम देखेंगे उसको और आई विल टेल यू व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, बट डेफिनेटली यू नीड टू मेक probably in a piece of paper you have to keep all of them together, और उसको आप बार बार देखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा, डरने वरने की जरूरत है नहीं, है ना. So the next segment my dear kids is going to be the moment of inertia of some well known shape, some known shape, known figures. ऐसे रखते हैं, कुछ known figure है उसका moment of inertia अपने को जानना चाहिए, important है, क्योंकि until you know these things ना, आगे चल के जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता होना जरूरी है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, और यू शुड आल्सो नो द प्रोसेस हाउ टू फाइंड, बिकॉज़ इन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोसेस आल्सो. आपको बात पता होना चाहिए. जेई वाले लोग एडवांस खास करके वो ऐसा पूछते हैं क्वेश्चन कि आपको इंटायर प्रोसेस पता होना चाहिए, ना जस्ट कि आपको रिजल्ट दिमाग में होना चाहिए. पहला देख लेते हैं, रिंग ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन. सारे को मैं यूनिफॉर्म लेकर चल रहा हूं, ठीक है. एक रिंग है, लेट्स सपोज देयर इज अ रिंग, और I want to find the moment of inertia about the axis passing through the center. मैं इसको एक पहला क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूं, I'm writing it down. Moment of inertia about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. मतलब रिंग के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग, इट हैज बीन ऑफ रेस्क्यू टू मी ऑल द टाइम. सपोज कि रिंग है बच्चे ना, दिस इज ओके, लेट्स से दिस इज अ रिंग, दिस इज द एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट. सो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा हम उसको निकाल रहे हैं. लेटर ऑन गोइंग फॉरवर्ड आगे क्लास में देखेंगे जब हम ऐसे भी इसी एक्सिस के अलोंग भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, इसके अलोंग भी निकाल सकते हैं, और इंक्लाइन के अलोंग भी निकाल सकते हैं. दोस थिंग्स आई एम गोना डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियो लेसन. बट आज के लेसन में हम क्या देख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग. हम उसका चर्चा आज हम लोग अभी करने वाले हैं जी. ऑल गुड. देखो प्रोसेस बड़ा सिंपल है, करना क्या आपको, इसका मास हो गया मान लो m, radius is r, radius मान लो r. Now the mass is distributed about the circular path along this outer surface. तो इस केस में क्या हो जाएगा, लीनियर मास डेंसिटी हो जाएगा. दिस इज गोना बी अ केस ऑफ लीनियर मास डेंसिटी. तो लीनियर मास डेंसिटी निकाल लो. नाउ दैट इज गोना बी टोटल मास अपॉन द टोटल लेंथ व्हिच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ कोर्स. तो ये हो गया आपका लीनियर मास डेंसिटी केजी पर मीटर, ग्राम जो भी आपको मर्जी है वो आप रखो, मेरे को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं. इट्स ऑल अबाउट द मास per unit length. Anyways, what is the next step? Next step is
हम गोना ओके, मैं इसको ना वर्टिकल, आप ऐसे तो देख रहे हो इस प्लेन में, मैं इसको टॉप व्यू दिखाता हूं आपको, ठीक है? तो दैट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है? दिस इज द टॉप व्यू ऑफ दिस रिंग। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो आई नो द रेडियस इज आर, तो किसी एक छोटा सा एलिमेंट को आप चूज कर लो एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ऑफ कोर्स द रेडियस विल नॉट चेंज। नाउ देखो बहुत सिंपल है, इसका छोटू सा मास आप डीएम ले लो, है ना? तरीके बहुत है इसको सॉल्व करने का। बिकॉज ऑफ दिस छोटू सा मास, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ड्यू टू दिस छोटू सा मास, व्हाट्स गोना बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, वो हमने निकाल लेने हैं। तो बच्चों डी आई, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिकॉज ऑफ दिस छोटू सा मास, शुड बी डी एम आर स्क्वायर। देखो ऐसे तो बहुत ही इसको हम लोग टाइम पास कर सकते हैं इसके साथ कि भैया इसको dx मान लो, लेट्स से दिस इज dx ले लो, तो फिर इस dx का छोटा सा मास कितना होगा? तो तरीका बहुत है, तो उस छोटे सा dx लेंथ का छोटा सा मास कितना होगा? तो दैट dm शुड बी लैम्डा टाइम्स ऑफ dx। ये सब आप कर सकते हो, चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। m अपॉन 2 पाई r कर लो, dx कर लो, आपका हो गया एक छोटा सा मास। अब फिर इसको यहाँ पुट कर दो, तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा कैपिटल M अपॉन 2 पाई r, और आपका हो गया r स्क्वायर। तो हटो भैया इधर जो चलो यू नो dm और r स्क्वायर हो गया dx, करेक्ट है जी। अब एक कुछ कटम पिटम होके आपका जो di हो गया वो हो जाएगा mr बाई 2 पाई, और dx को अगर पूरे को इंटीग्रेट कर दें तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। dx कहां से कहां तक जाएगा जी? 0 to 2 पाई r जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दैट इज गोना बी mr अपॉन 2 पाई, और इसको आप इंटीग्रेट करके x हो जाएगा, तो 2 पाई r हो गया जी। एक 2 पाई गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका हो गया mr स्क्वायर। इतना ताम झाम करके आप ला सकते हो, वरना मैं क्या करूं, सिंपल से बात है, मुझे इसके लीनियर मास डेंसिटी में जाना ही नहीं है। अब वो जस्ट से कि स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गोना बी स्मॉल m r स्क्वायर, इसी को इंटीग्रेट कर दो। आई नो दैट कि r इज अ कांस्टेंट वैल्यू, r को बाहर निकाल लो और dm को इंटीग्रेट कर दो। मास कहां से कहां तक जाएगा? 0 टू टोटल जो मास है, तो टोटल मास r स्क्वायर, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत सिंपल से, बहुत ही कम शब्दों में आपको आंसर मिल जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी ना जी? बहुत अच्छे। इसी को थोड़ा सा और देख लें हम लोग कि अगर उस सिलिंड्रिकल शेल में देख लें, नंबर 2 जो हम शेल का बात कर रहे थे, सिलिंड्रिकल शेल है ना, सिलिंड्रिकल शेल जो अभी हमने देखा था, अगर ऐसा कुछ हम मान लेते हैं कि भैया एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर शेल उसी को बोलते हैं ना। आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो आई कैन आल्सो गो एंड डू ऑल दिस तामझाम। आई एम गोना चूज स्मॉल, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लो, टिक टिक टिक, फिर वही सब सारा प्रोसेस करेंगे। बट अपने को ऐसा करना है नहीं, अपने को सिंपल से बात पता है कि इफ आई कंप्रेस इट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, इसको वर्टिकली इसको कंप्रेस कर दे, ऐसे बना दे, इसको रिंग बना दे, तो कोई भी गलत बात होगी नहीं। Because you know that if I shift the mass parallel to the vertical axis, जो भी एक्सिस के पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता नहीं है। तो इफ आई जस्ट कंप्रेस इट, यू नो, तो आपका मास वही रह गया, रेडियस वही रह गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या हो जाएगा? दैट वुड बी सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूं क्योंकि बेसिक बातें हैं, इसमें कुछ भी जान नहीं है, और आप ढंग से सीखोगे तो आपको भी बहुत ही आसान लगेगा। तो सोफार हमने 2 बात देख ली, रिंग का देख लिया और एक सिलिंड्रिकल शेल का देख लिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और भी हम लोग को बहुत कुछ अभी देखना बाकी है ना जी? चलो तो ये सब आप वीडियो को चाहो तो स्लो डाउन करके देख सकते हो। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो यू कैन जस्ट स्लो डाउन अ बिट एंड यू कैन नोट इट डाउन, और मेरे को लेट मी नो इफ आई एम गोइंग फास्ट, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो चला जाऊंगा, बट आई एम श्योर इट्स गोना बी प्रीटी मच ओके टू ऑल ऑफ यू। आपका भी टाइम सेव होगा, है ना, and I would be able to deliver more content in the lesser amount of time. All good बच्चों? ठीक है, चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। वैसे तो हमने बहुत सारा कुछ देख लिया है, एक जो आपको पता होना चाहिए, डिस्क पे हम बाद में आएंगे, पहले एक देख लो, आर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आर्क। लेट्स सपोज कि आई हैव एन आर्क, है ना, और आई एम गिविंग यू दैट इस जो आर्क का जो सेंटर होना चाहिए, प्रोपोज्ड सेंटर इज लेट्स सपोज ओवर हियर, इसका जो बड़ा ही थोड़ा सा ओके टिक 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 सिमेट्रिकल दिखे तो आपको भी देखने में आनंद आएगा जी, है ना। तो अबाउट दिस एक्सिस, है ना, एक छोटा सा आर्क है, अबाउट दिस एक्सिस आई वांट टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये थीटा अपना कुछ एंगल वैंगल वो बना रहा है, ठीक है। मास ऑफ दिस आर्क, मास ऑफ द आर्क ही मैंने दे रखा है, मास ऑफ द आर्क,
इज लेट्स सपोज m, रेडियस हमने मान लिया इसका r। अब आपको निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस आर्क अबाउट दिस एक्सिस, और एक्सिस कैसा हुई हो, है ना, प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अच्छी बात है। मास क्या है? दिस इज द मास ऑफ दिस आर्क ओनली, तो वही सेम प्रोसेस हमारा क्योंकि दीज आर द कंटिन्यूअस बॉडी, तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अगर डिस्क्रीट पार्टिकल होता, लाइक वी हैड सीन इन द प्रीवियस टू प्रीवियस एग्जांपल, वी जस्ट एडेड ऑल द मोमेंट ऑफ इनर्शियास ऑफ इंडिविजुअल मासेस, बट नाउ सिंस वी हैव द कंटिन्यूअस पार्टिकल, दैट्स द रीजन व्हाई वी यूज द कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने बहुत बारी चर्चा कर ली है, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत मेरे को लगता नहीं कि है ना। सेम काम करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो जी बच्चे, है ना, dx ले लो, और ये मर जा ये है ना, और इस dx का छोटा सा मास होगा dm ले लो, है ना। चलो ये ब्लू मार्कर इज नाउ ओवर, चलिए भाई जाइए आप, है ना। तो दिस इज का छोटा सा मास बच्चों कितना हो जाएगा, dm हो गया, है ना। तो आई नो दैट बिकॉज ऑफ दिस छोटू सा मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट दिस पॉइंट शुड बी हाउ मच, dm, रेडियस बीइंग r, लिख लो इधर r स्क्वायर। If I just want to find the total moment of inertia, I just need to probably integrate this, and that should be dm r square. Tick tick tick, you know, and r square being constant should be taken out. So I should be having r square integration of dm, and we know that the mass of this arc itself is given as m. Well, my kids, that's going to be 0 to m, and you should be getting as how much, m r square. Oh, that's it, you know. So if I have an arc of a given mass m, well then you know your moment of inertia about the axis passing through the center and perpendicular to the plane, my dear kids, is going to be m r square. तो अभी तक हमने जो भी करा है, be it ring, be it cylindrical shell, or be it an arc, the moment of inertia in all these three cases were m r square और m r square. तो आप इन तीनों फिगर्स को एक साथ लिखोगे, बिकॉज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ऑल दीज थ्री फिगर्स इज m r square. आपको याद होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है जी? रिंग, सिलेंडर और आपका आर्क। रिंग, सिलेंडर, आर्क, आर्क, रिंग, सिलेंडर, आपकी जैसी मर्जी, आप उसको वैसे अपने दिमाग में फिट कर सकते हो इन व्हाटएवर ऑर्डर यू वांट टू फिट। ऑल गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे इस पे कुछ बात करना चाहते हैं। आई वांट टू डिस्कस लिटिल बिट मोर अबाउट दिस। ठीक है, तो हमने इसको देख लिया। ओके, नाउ लेट अस सी कि नेक्स्ट केस कुड बी, इंस्टेड ऑफ गिविंग द मास ऑफ दिस आर्क, आई कैन एक्चुअली गिव यू दैट अ सिचुएशन वेयर आई कैन हैव अ रिंग, टोटल मास इज m and the radius be r, total mass, and let's suppose the radius is r, total mass is m of the entire ring. ठीक है जी? अच्छा, if I ask you to find, let's suppose I'm making some arc over here that is subtending an angle theta at the center, and let's say this arc, this arc is here. I want you guys to find the moment of inertia due to this arc at the center about the axis which is passing through the center and perpendicular to the plane of the ring. अब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस आर्क के कारण, व्हाट्स गोना बी, लेट्स सपोज बिकॉज ऑफ आर्क AB, व्हाट्स गोना बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस आर्क. दिस कुड बी अनदर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ हियर वी हैड मास ऑफ द रिंग आर्क, हियर वी हैव द मास ऑफ द एंटायर रिंग. इस बात को दिमाग में रखना, कीप दैट इन माइंड बच्चों. अब क्या करेंगे? नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड, वी आर what is going to be the elementary mass, what is going to be the mass of the elementary particle, you can say. तो this mass is for the entire circumference. तो आपको जो mass density हो जाएगा, let's suppose that is lambda, mass density should be how much? m upon your 2 pi r. That's going to be the mass density. That way we can also think, right? Also what we can think is, since now we're talking about in terms of degrees, so I can say that for 2 pi radians, 2 pi radians, the total mass is going to be how much? m. So 2 pi corresponds to mass m. Therefore, any angle theta should correspond to how much? m upon 2 pi into theta. So we will not go this way because in that case we have to find the arc length. वो भी निकाल सकते हैं, not a big deal. But अगर theta directly दे रखा है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, m upon 2 pi into theta, where theta is in radian. Ensure that theta in radians. इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थीटा रेडियंस में है. ऑल गुड. तो अपने को मिल गया, फॉर द थीटा मास इज गोना बी दिस मच, है ना. तो ये आपका हो जाएगा dm, मास ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क, दैट इज गोना बी m, व्हिच इज मास ऑफ द टोटल रिंग अपॉन 2 पाई इनटू थीटा. अब क्या चाहिए? अपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू दिस. ऑल गुड. तो इसको आप dm रखो, या फिर अपना जो रिक्वायर्ड मास है उसको मान लो कैपिटल M मान लो, है ना. या फिर अगर हम कैपिटल M, तो ऑब्वियसली इट इज अ बिगर सेंस, तो टोटल मास ऑफ द रिंग कैपिटल M मान लेते हैं. टोटल मास ऑफ द रिंग कैपिटल M मान लो बच्चों, टोटल मास ऑफ द रिंग कैपिटल M मान लो. चलो भैया इसको ना चेंज कर देते हैं.
क्योंकि नॉर्मली वी हैव अ टेंडेंसी दैट कैपिटल एम वुड रिस्पॉन्ड टू अ बिगर वैल्यू, एंड इस टोटल का मास आप m ले लो. So this m will be given as how much? M upon 2 pi times theta. Then the moment of inertia should be how much? Mr square. So that should be m upon 2 pi theta into r square. ध्यान से देखना, ये आपका हो गया moment of inertia because of this arc which is subtending an angle theta at the center. आप इसको बड़ा अच्छे से समझ लो, एंड दोनों का डिफरेंस जो आप में होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द मास ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्क एंड हियर द m मास इज द ऑफ द रिंग. इतनी बात तो क्लैरिटी के साथ क्लियर आपको. अगर थीटा देखो, अगर थीटा 2 पाई हो गया तो कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? mr स्क्वायर व्हिच इज द मास लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इटसेल्फ. तो इट इज अ जनरल फॉर्मूला, इट इज अ जनरलाइज्ड फॉर्मूला व्हिच यू कैन यूज फॉर सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, जो भी आपको चाहिए आप एंगल पुट करके आप इसको यूज कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है. चलो फटाफट हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे थोड़ा डिस्क की तरफ चलेंगे. ठीक है, we're gonna walk about the disk. तो हमारा जो नेक्स्ट फिगर है बच्चों, that is going to be disk. मैं इन इंपॉर्टेंट फिगर्स के डेरिवेशंस करवा देता हूं, और एज आई टोल्ड यू बाकियों का मैं आपको डायरेक्टली वैल्यू लिखा दूंगा, और यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ दैट. नेक्स्ट फिगर दैट वी हैव इज, लेट्स सपोज disk. Disk of uniform mass density. As of now I'm not talking about any non-uniform mass density. I'm talking about the uniform mass distribution के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. तो अच्छी बात है. लेट अस टेक अ डिस्क. एक हमारा डिस्क हो गया जी. ठीक है, हैविंग सेंटर ओवर हियर, आपने को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर एंड आई एम लाइक अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू दिस सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द आपका डिस्क है. तो दिस इज डिस्क ना, ये हमारा डिस्क है. इसका मास ले लो m, रेडियस ले लो r. ऑल गुड. अगेन आई हैव टू चूज द एलिमेंट्री पार्टिकल. एलिमेंट्री पार्टिकल तो अपने को लेना ही है, बट उसके पहले मैं थोड़ा ना सिग्मा जो मास डेंसिटी है उसको डिफाइन कर देता हूं. तो आपका हो जाएगा बच्चों m अपॉन एरिया ऑफ दिस डिस्क. अगर रेडियस मान लेते हो, r मान लेते हो, तो दैट इज गोना बी पाई r स्क्वायर. मास अपॉन द टोटल एरिया, वी कैन गिव यू द सिग्मा. सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया. तो आप लिख सकते हो kg पर मीटर स्क्वायर. दैट इज गोना बी द यूनिट ऑफ दिस. अच्छा, elementary particle क्या होगा? What's going to be the elementary particle for a disk? Well, you need to understand one thing, that elementary particles are those which been kept for the infinite number of times. अपने को वो एक पूरा आपका जो फिगर है, पूरा जो शेप है वो मिल जाए ना. तो it is quite evident, और आपने बहुत पहले कर भी लिया है, कि if I choose a ring of let's suppose radius r, और x मान लो r is the radius of this one, at of certain thickness, कुछ thickness जरूरी है वरना तो कभी भी वो डिस्क बना नहीं पाएगा ना. So we can choose a ring of radius r and thickness मान लो कितना? Thickness should be dx. Now if I can find the moment of inertia for this elementary particle, and then I'm going to integrate for the entire range from x to r, 0 to r का integrate कर देंगे, we're going to get the moment of inertia. Fundamental theory अपना ये है ना, और इस theory को मैं बार बार बोल रहा हूँ so that आप इसको समझ जाओ, क्योंकि next question जब हम लोग complicated questions करेंगे, you should be able to apply these over there. आपको अप्लाई करना आना चाहिए. यही इस टॉपिक में आपको पता हो अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाएगा. आप देखते जाओ, साथ में हम लोग करते जाएंगे. ठीक है, एनीवेज, तो अपने को ये पता चल गया जी. तो एक काम करो, इसका जो छोटा सा एरिया होगा, इफ आई कुड नो दैट, आई वुड मल्टीप्लाई विद द सिग्मा एंड आई विल गेट द टोटल मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच इज अ रिंग ओवर हियर ऑफ थिकनेस dx. तो इसका एरिया निकालने का जो बहुत अच्छा तरीका बच्चों है, वो क्या करना आपको, आप इसको ऐसे कट कर दो. चलो हटाओ, कट करके इसको ना आप, इफ इट इज अ सर्कुलर थिंग, इसको कट करके सीधा कर दो, देन इट इज गोना टेक अ शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ थिकनेस. कितना हो जाएगा इसका dx, और जो लेंथ हो जाएगा दैट इज गोना बी द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस व्हिच शुड बी 2 पाई x. ध्यान से मेरे साथ आप समझते रहो. 2 पाई x गोना बी द लेंथ, थिकनेस इज दिस. तो इसका जो बच्चों छोटा सा एरिया होगा dA, दैट शुड बी हाउ मच? लेंथ इनटू विड्थ, दैट शुड बी 2 पाई x टाइम्स ऑफ dx. ये अपने को पता चल गया बच्चों. I've got the area of this elementary particle, elementary strip. तो इसका जो मास होगा dm, छोटा सा मास, that should be how much? Sigma times of dA. अब वैल्यू पुट कर दो इसमें. तो सिग्मा कितना है? हाँ, बट बी केयरफुल व्हाइल सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, आप उसमें मिस्टेक ना करो. और r और x अगर आप चूज कर रहे हो तो इन पर्टिकुलरली केयरफुल रहो. मैं कितनी बार r और x को मिक्स कर देता हूं, क्योंकि द वे आई राइट कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है मेरे में ना. तो आई जस्ट वांट टू शेयर विद मी यू पीपल कि या दैट्स वेयर आई प्रोबब्ली गो रॉन्ग सम टाइम. तो आप भी थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए ना. तो पाई r स्क्वायर, और आपका हो गया, दिस इज योर सिग्मा.
तो हमने सिग्मा डाल दिया, डी कितना हो गया बच्चों 2 पाई x dx है ना। तो क्वाइट क्लियरली आई कैन सी आई कैन एक्चुअली कैंसिल इस पाई को, तो मैं भगा सकता हूं। चलो भाई तुम चले जाओ है ना। तो कितना हो गया बच्चों देख लो m अपॉन और 2m अपॉन आर स्क्वायर। आई एम ट्राइंग टू कीप द कांस्टेंट्स ऑल टुगेदर एंड x dx आपको यहां मिल जाएगा। दिस इज गोना बी योर स्मॉल dm। इतना तो मेरे को पता चल गया जी है ना। अच्छा मेरे को स्मॉल dm चल गया पता, तो भैया छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल, वो कैसे निकालेंगे? आपको पता है ना रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर, राइट। तो थ्रू द सेंटर है ना, थ्रू द सेंटर। तो इस छोटे से रिंग का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा dm बच्चों, और रेडियस इज हाउ मच x, तो इट्स गोना बी dm x स्क्वायर। ऑल गुड, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने ऑलरेडी निकाल रखा व्हिच इज mr स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा dm x स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो और इसको इंटीग्रेट कर लोगे आप, तो आपको फाइनल आंसर बच्चों मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मीनवाइल आई एम इरेजिंग दिस, आप ना उसको करते रहो। यू ट्राई डूइंग दैट, कीप डूइंग दैट, एक्चुअली आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट इट। और मेरी आपको इरेज करने से पहले आप आंसर निकाल लोगे, ऐसा उम्मीद है आप उसको कर लोगे जी, है ना। बहुत अच्छा, चलिए तो मैंने तो इसको इरेज कर लिया। अब हम साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों दैट इज गोना बी हाउ मच डी आई, और वेरिएबल जो भी है बेस्ड ऑन दैट वी गोना सब्स्टिट्यूट द लिमिट्स, यू नो, बेस्ड ऑन दैट वी गोना पुट द लिमिट्स। तो भैया इसको आराम से अच्छे से लिख देना आप। डीएम कितना हो गया, तो सो वी हैव व्हाट 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स dx, और बच्चों आपका कितना हो गया x स्क्वायर, नो x स्क्वायर भी वहां पे वी शुड नॉट फॉरगेट टू राइट है ना। सो दिस इज गोना बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Now what is variable? X is variable. What's going to be the range of x from 0 to r? Let us put the limit from 0 to r. That means moment of inertia should be, I'm going to keep this constant out, that is 2m upon r square should be taken out. We should be having x cube dx, and this is going to be from 0 to r. That means we're going to have 2m upon r square. X cube is going to be x to the power of 4 and upon 4, and the limit is going to be from 0 to r. That means my dear kids it's going to be 2 capital M r square times of r to the power of 4 upon 4. 2 would be cancelled, r would be cancelled as r square, and the moment of inertia kids that's going to be m r square upon 2. Well, that's the moment of inertia of the disk of radius r about the center, about the axis passing through the center. ऑल गुड, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए इतना तो हमने सीख लिया, डिस्क विषय सीख लिया, रिंग सीख लिया। अब थोड़ा बात करते हैं रॉड के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट द रॉड, क्योंकि रॉड का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ए से भी है, ठीक है जी। चलिए तो द नेक्स्ट फिगर दैट वी हैव इज योर यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ, यू नो यूनिफॉर्म रॉड। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड का बात करें, हम बात करेंगे ऑफ द वेरिएबल रॉड ऑल्सो, हम सारे डिस्कस चर्चा करेंगे आपके साथ, डोंट यू वरी फॉर दैट। You will be assured, I assure you that I'm going to be doing that. चलिए जी, ये हो गया आपका एक रॉड मान लो जी। Let us take a rod. इसका मास m ले लो, लेंथ मान लो स्मॉल l, कैपिटल L, आपकी मर्जी, जैसे चाहो आप कर सकते हो। देखो इसमें दो पॉइंट आते हैं, two things we should know. Now this rod, most of the people, most of the books will be giving about the center, you know, of the rod and the axis perpendicular to the rod. दो वेरिएशंस हो सकते हैं, we can have two variations. One is going to be about this point, axis is about at one extreme, और इसके about वो free है to rotate. All good. So let's suppose कि it is rotating about this. आपका जो axis है इसके you know perpendicular इस तरफ है, which is at one edge. You have to find the moment inertia about this axis which is at edge. So you're going to find moment of inertia about axis at extreme of the rod, or at extreme of the rod, extreme of rod इस पे है। then what's going to be the moment of inertia, तब क्या होगा अपने को पहले वो निकालना आना चाहिए, ठीक है जी। अच्छी बात है, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं थोड़ा सा इसको इधर इरेज कर लूं बच्चों, है ना। लेट मी जस्ट इरेज दिस आउट, थोड़ा स्पेस अपने को मिल जाएगा। ओके, आइडिया वुड बी वेरी सिंपल, वी कैन चूज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। हम एलिमेंट्री पार्टिकल चूज करेंगे and we're gonna proceed as normally what we do. So what I'm gonna tell you is, let us choose a small elementary particle over here of at a distance, let's suppose x, of thickness dx. Now this element will have a certain amount of mass, तो इसका mass मान लो क्या
इसका मास है बच्चों dm है। ऑल गुड, इसका मास आपका हो गया dm। अच्छी बात है, तो dm पहले निकालना सीखेंगे। नाउ इट इज अ रॉड, सो लीनियर मास डेंसिटी शुड बी व्हाट, mass upon the total length. So m upon L kg per meter is going to be the linear mass density. So for this particular element, small mass should be how much, lambda times of dx बच्चों। so small mass element of कितना हो जाएगा बच्चों, lambda is how much, m upon L times of dx। ये आपका हो गया mass of this elementary particle। all good। चलिए अब हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन हैव सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओवर हियर। तो लेट अस सपोज छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ दिस मास शुड बी हाउ मच, dm x square, and to get the total inertia I'm just going to integrate this. Now the variable is what, variable is x, which is going to vary from 0 to L. Let us put the limit also 0 to L, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dm का वैल्यू पुट कर दो, तो we'll be having what, m upon L dx into x square. Let us integrate from 0 to L, and बच्चों m and L are constant, x square का इंटीग्रेशन हो गया x cube by 3, तो बच्चों will be having m upon L, आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दो, L cube upon 3 हो गया जी, है ना। तो टिक टिक बरसा पानी, और ये हो गया आपका 1 upon 3 ml square. So this is going to be the moment of inertia of a rod about an axis passing through the extreme of the rod, और आपका बहुत ही easily ये मिल जाएगा, कुछ भी दिक्कत वाली बात है तो नहीं, है ना जी। ओके हम इसी क्वेश्चन को करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, है ना, दैट कुड बी द नेक्स्ट कैटेगरी। तो फटाफट हम आगे बढ़ते जाएंगे। नंबर 6, अगर एक्सिस जो है बच्चों वो रॉड के सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रॉड है, ऑल द पैरामीटर्स आर सेम, मास is m, length is L। अब इसके अबाउट, दिस इज एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो मुश्किल। व्हाट आई एम गोना डू इज फ्रॉम हियर लेट अस चूज एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x। टिक 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 टिक, वही सेम कहानी, इसका dm निकाल लोगे जी, है ना। तो dm वही हो जाएगा m upon L, आपका जो है m upon L टाइम्स ऑफ dx। तो इस छोटू के कारण अबाउट दिस एक्सिस आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों कितना हो गया, di, दैट शुड बी योर m अपॉन L, और dx हो गया, और लेंथ इज x स्क्वायर। नाउ द पॉइंट इज फ्रॉम वेयर टू वेयर द लिमिट शुड बी सेट, सिंस आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज गोना बी L by 2, सो 0 to L by 2 gonna be the moment of inertia because of this part। इतनी बात तो समझ में आ रही है आपको। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों कितना हो जाएगा, m upon L इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x cube upon 3। let us set the limits from 0 to L by 2, and that's gonna be m upon 3L, and we should be having what, L cube upon 8। इतनी बात अपने को समझ में आ गई है ना जी। तो this would be able to cancel this, and I should be having the moment of inertia should be 1 upon 24 times of ml square। Okay sir, आपने तो सिर्फ हाफ का निकाला, इस हाफ का क्या, कोई दिक्कत नहीं है, इस हाफ का क्या करेंगे, डबल कर दो इसका। so the total moment, इसको मान लो आप I dash, you know, I dash is going to be the moment of inertia for this part। total का moment of inertia my dear kids, that is going to be how much, 2 times of I dash। क्योंकि भैया ये वेक्टर नहीं है तो परेशान मत हो कि सर इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, तो वो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ टॉर्क कपल, कपल फॉर्म नहीं कर रहा है, इट्स अ प्योरली स्केलर क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको, मैंने पहले भी बोल रखा है। तो चुपचाप आंखें खोलकर और दिमाग को सुस्त रखकर इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, डबल से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने को एक बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिल जाएगा बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस, दैट इज 1 upon 12 ml स्क्वायर। और यही तो आप बहुत जगह देख रखे होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर होता है 1 upon 12 ml स्क्वायर। आपको सब रट जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और वेरिएशंस को बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। कहां गया डस्टर जी, हाँ, लेट अस सी सम मोर वेरिएशंस इन दिस। मीनवाइल यू गाइस प्लीज नोट इट डाउन और अच्छे से याद करते जाओ। अबाउट एक्सिस कितना हो गया, 1 upon 12 ml स्क्वायर, और इसकी तरफ 1 by 3 ml स्क्वायर। एक सिंपल सी बात समझ लो आप, इफ द एक्सिस इज हियर, ज्यादा मास जो है, मोर ऑफ द मास इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। आप देख लो डिस्टेंस कितना L था, मास डिस्ट्रीब्यूशन वाज टिल L, तो ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सट्रीम एक्सिस ज्यादा था 1 upon 3, क्योंकि सेंटर से मासेस का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नाउ रिड्यूस्ड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम गया 1 upon 12 ml स्क्वायर। सो फ्रॉम दिस कंडीशन, ओके मैंने इरेज कर दिया, आई एम श्योर यू मस्ट हैव रिटन इट। सो कंपेयर टू दिस वन, व्हेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज फाउंड अबाउट वन एक्सिस व्हिच इज एट एक्सट्रीम,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कम होता है। तो लॉजिक भी है ना, बिकॉज मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज नाउ नैरोड डाउन, वो काफी नजदीक नजदीक हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली उसका कम हो जाएगा, है ना बच्चों। चलो हमने ले लिया डिस्क देख लिया, हमने देख लिया रिंग देखा, हमने रॉड्स को भी देख लिया। अब एक दो चीज अब मैं आपको करवा देता हूं। एक हो गया आपका ट्रायंगुलर लैमिना। टाइम इज ए कंस्ट्रेंट, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग भाग जाओगे देखकर ही लेंथ, यार मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंथी टॉपिक है, इसको बाद में देखेंगे ना। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम ट्राइंग टू कीप द, मैं वीडियोस को ना थोड़ा छोटे छोटे लेंथ्स में बनाता हूं ताकि आपको एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट है वो नहीं आ जाए, ठीक है जी। बट एनीवेज आई एम श्योर आप लोग बच्चे अब थोड़ा समझदार हो गए हो, आप लोग इसको अच्छे से समझ लोगे, ठीक है। एक हम और देखते हैं, आई थिंक सिक्स्थ वी हैव डन, लेट्स से सेवंथ, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना बोलते हैं इसको ना, ट्रायंगुलर लैमिना। अगर ट्रायंगुलर है तो जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अपन को देखना, ठीक है। कोई बात नहीं, एक फटाफट जल्दी से एक ट्रायंगल ले लेते हैं ना, और इसका कुछ बेस वी कैन मेक सेट द बेस, और इसका कुछ हाइट हम सेट कर लेंगे, ठीक है जी। ओके, तो लेट अस से इसका जो बेस का जो लेंथ है बच्चों वो b मान लो, और जो हाइट है उसका, सॉरी अबाउट दैट, हाइट को आप h मान लो। चलो इसको थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। हाइट इसका h हो गया, ठीक है। नाउ क्योंकि ये ट्रायंगुलर लैमिना है तो इट विल हैव सम एरिया, एरिया पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहली बात जो हम करते हैं, व्हाट वी डू इज वी गोना फाइंड द सिग्मा। अपन को पहले क्या चाहिए, सिग्मा चाहिए। सिग्मा इज द एरियल मास डेंसिटी, टोटल मास ले लो m मान लो इसका, तो कितना हो जाएगा बच्चों, m अपॉन एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच इज गोना बी हाफ इनटू बेस इनटू हाइट हाफ bh। तो इसको थोड़ा अच्छे शब्दों में लिख लो, 2m अपॉन bh, ये हमारा हो गया सिग्मा। नाउ द एलिमेंट्री पार्टिकल कैसा चूज करें इसमें, तो एक तरीका तो है कि हम एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे चूज कर लें, एट एनी हाइट y, एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल चूज कर लें किसी हाइट y पे, और इसका जो विड्थ है इसको मान लो dy, काफी छोटा है। तो यू नो इफ यू लुक एट दिस थिंग, दिस कुड बी अज्यूम्ड, दिस कुड बी लुक्ड अपॉन एज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ऐसे, बट सिंस इज अ वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, तो जो स्लांट हाइट है वहां पे ऑलमोस्ट उसको हम स्ट्रेट मान के चलते हैं, तो इसको आप रेक्टेंगुलर मान सकते हो, ठीक है। तो इस रेक्टेंगुलर का एरिया निकाल लो छोटू सा। तो छोटू सा एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, आई वांट दिस लेंथ। अच्छा इसको मैं कुछ ले लूं, इसको हम रख लेते हैं बच्चों x मान लेते हैं, ठीक है। तो x इंटू डी वाई, अच्छा ठीक है जी। अब x का वैल्यू कैसे निकाले बच्चों, x का वैल्यू कैसे निकाले, एक सिंपल सा तरीका आपको मैं समझाता हूं। लुक एट दिस टू ट्रायंगल, मैं यहां नाम दे दूं भैया a b c d और e, लेट मी जस्ट नेम इट, है ना। तो ट्रायंगल CDE and triangle CAB would be a similar triangles, right ना। This is common angle और ये दोनों पैरेलल है, तो दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सिमिलैरिटी का यूज करके हम कैन आई से दैट, मैं इधर ही लिख लूं, सिमिलैरिटी का यूज करके व्हाट आई कैन से बच्चों इज लेंथ ऑफ दिस अपॉन दिस लेंथ शुड बी दिस लेंथ अपॉन द टोटल लेंथ, है ना जी। तो इसको x मान लो, x अपॉन दिस लेंथ व्हिच इज b, है ना। भैया सीधा हो जा, है ना। एंड दिस लेंथ इज गोना बी हाउ मच, दैट शुड बी h minus y, देख लो ये जो लेंथ होगा बच्चों, दिस लेंथ शुड बी टोटल लेंथ माइनस दिस लेंथ, so I can say h minus y, and नीचे तो आपका h है ही, तो टोटल हाइट है ना। तो that would suggest you that x should be equals to b times of h minus y upon h. Be careful with the writing of b and h, कभी कभी b और h भी confused इंसान हो जाता है, तो थोड़ा बच के रहना, ठीक है जी। चलो x तो मेरे को मिल गया जी, तो इसका एरिया कितना हो गया, x into dy। ओ भाई साहब थोड़ा अच्छा खासा खतरनाक मेरे को दिख रहा है, बट कोई नहीं, अपने को डरना है नहीं, वी कैन गो विद द फंडामेंटल्स और सारे काम हमारे आराम से हो जाएंगे बच्चों। सो दिस इज योर स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया मेरे पास है, सिग्मा मास डेंसिटी है, तो छोटू सा मास निकालने से हु कैन स्टॉप अस, कोई नहीं जी, है ना। सिग्मा इंटू डी कर दो, तो सिग्मा है आपका 2m अपॉन bh, राइट। 2m अपॉन bh हो गया बच्चों, और यहाँ कितना हो गया, डी आपका हो गया, लिख लो भाई b h minus y upon आपका हो गया जी h, all good, you can see that, right। Do we have something which can be cancelled? Yes, of course we can cancel bb over here, so finally what we get is small mass is going to be 2m, h being constant, I would like to have it over here, and h into h square, don't miss it out, so we'll be having h minus y in the numerator, so I've got the value of small mass, okay, that's great।
Once I know the value of small mass, finding the small moment of inertia is not a big task for us. We can easily get it done, kids. So the small moment of inertia, because of this small element mass, yeah, it's sweating. Okay, ठीक है जी, good good good. ये हो गया कर्नाटका में ठंडी का कोई असर नहीं है. राइट, हाँ, हमारे बिहार झारखंड में इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया you guys must be shivering, but here it's kind of, you can see that. Anyways, coming back to the track, so we have di should be how much? dm and its distance from this अच्छा axis हमने define किया ही नहीं and we started doing it. Fantastic, क्या मस्त है ना. Let's suppose कि about this axis I want to find, I could have chosen any axis, वो हमारे पे डिपेंड करता है. तो इस axis के about हमको निकालना है. अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं. तो this is going to be how much? dm y square. All good. So the di should be चलो फटाफट वैल्यू पुट कर दो जी. 2m upon h square. देखो डेरिवेशंस मैं आपको करवा रहा हूं फॉर द सेक ऑफ यू टू अंडरस्टैंड. आपको याद करना है, एग्जाम्स के टाइम पे आपको डिराइव करने का टाइम मिलेगा, नहीं पूछता है वो. दे डोंट इवन केयर अबाउट दीस स्मॉल स्मॉल डेरिवेशंस. उनका डेरिवेशन अलग टाइप का रहता है, अलग जोन में रहता है. तो आप प्लीज इसको याद कर लेना, मैं आपको सिखाने के लिए डिराइव कर रहा हूं. नो अदर रीजंस व्हाई आई एम डिराइविंग इट ओवर हियर. ओके, I believe that's pretty much clear to all of you. Anyways, where I was, so di should be how much? This dm, that's going to be h minus y times of y square. Just to get the total moment of inertia, I must integrate this, and the only thing which is variable is y, and the limit of y is going to be from 0 to h. I'm pretty much sure that you guys are okay with this. Y could be from 0 to the maximum height h. Let's take out the constant outside. We're going to have 2m upon h square should be taken out, and okay, we'll have h times of y square minus y cube and dy. dy कहाँ चला गया जी? dy कहीं भाग गया है क्या? did I just not put this? Okay, my bad. I must do that. So we should be having dm should be how much? हमने पुट किया था इसको b minus h y square. ठीक है जी. dy कहाँ गया? तो dy होना चाहिए आपका dm हमने यहाँ निकाला था ना, तो यहाँ पे आपका dy होना चाहिए, तो which we have missed. चलो ठीक है, जस्ट हम लोग जल्दीबाजी में गड़बड़ करने वाले हैं ऐसा लग रहा है. Anyways, 0 to h है ना जी. तो this is gonna be how much? We should be having 2m upon h square. I believe you can see that in the camp. Yes, it's coming. Good. And now here we're gonna have what? Put the limit h y cube and upon 3 minus y to the power of 4 upon 4 and put the limit 0 to h. All good. चलिए जी, h का लिमिट पुट कर देने से क्या मिल गया अपने को? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, अरे भाई है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I should be how much? 2m upon h square, and this h is going to be h to the power of 4 upon 3 minus h to the power of 4 upon 4 है ना, 4 upon 4. ये आपका हो गया आंसर. इसको रिजॉल्व कर लो. तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना हो गया? 2m upon h square. Well, you can have this h square common. We'll be having what? 12 as LCM. 4 minus 3, 1, h to the power of 4. We can cancel it up. We'll be having h square, and this is going to be 6 times. So finally what we have got is moment of inertia is going to be mh square upon 6. आप इस सब चीजों को रट जाओ, याद कर लो. Put it up all these details in one place और सारे आपको आंसर अच्छे से मिल जाएंगे. ऑल गुड बच्चों, चलो इसको नोट कर लो, नोट इट डाउन है ना जी. ओके, तो इतना अपना को हो गया है कि भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ट्राइंगल होगा mh square by 6 about the axis which is passing through the base of the triangle. अच्छा, इसी में one more application I would just like to let you know. इसको मैं थोड़ा इरेज कर लूं बच्चों. हाँ, आई एम श्योर यू मस्ट हैव नोटेड इट डाउन. आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है जी. थोड़ा सा इसको एक और इसके एप्लीकेशन को आपको दिखा देता हूं. चलो, एक स्क्वायर लैमिना है ना. लेट्स सपोज कि वी हैव अ स्क्वायर लैमिना ऑफ मास m. अपने पास एक स्क्वायर लैमिना है और इस पूरे स्क्वायर लैमिना का मास बच्चों m है और इसका साइड मान लो l मान लो, ठीक है. तो मास इज m एंड साइड लेंथ इज l. इट इज अ स्क्वायर लैमिना. अगर मैं बोलूं आपको कि मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्क्वायर लैमिना अबाउट वन ऑफ इट्स डायगोनल, इस डायगोनल के अबाउट मेरे को चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. देखो करना क्या है, बहुत सिंपल है. इफ आई लुक एट दिस diagonal and this square, we see that this diagonal is bisecting the square in two equal halves, and each of these two are nothing but a triangle of equal mass and equal area. They are purely symmetrical,
एंड मेरे को ट्राइंगल का पता है कि ml स्क्वायर बाय 6 होता है एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस टू फाइंड द h। भैया h क्या होगा इसका, इस ट्राइंगल का h क्या होगा? सो h इज गोना बी, डायगोनल मेरे को पता, डायगोनल कितना होता है जी, √2 टाइम्स ऑफ l। तो दिस इज गोना बी हाफ ऑफ द डायगोनल, दैट मींस दिस h इज गोना बी this upon 2 which means l upon √2। तो h is going to be l upon √2, so h is going to be l upon √2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द ट्राइंगल कितना था बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगल हमने जस्ट अभी निकाला है mh स्क्वायर बाय 6। नाउ बी केयरफुल, दिस मास इज द मास ऑफ द एंटायर ट्राइंगल। इस केस में मास हमने स्क्वायर का लिया है m, है ना, तो यहीं पे बच्चे गलत कर बैठते हैं। इसका मास कितना हो जाएगा? इस हाफ वाले पार्ट का मास हो जाएगा m/2 और इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा बच्चों m/2। सो दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल, द स्टूडेंट डू मेक सर्टेन अमाउंट ऑफ मिस्टेक, आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो अगर हम इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें अबाउट दिस एक्सिस और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ही गलत करेंगे ना, क्योंकि दोनों का मास सेम है, सिमेट्रिकल है और इसमें स्केलर क्वांटिटी हम लोग मानते हैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, तो देयर इज नो नीड ऑफ हैडिंग द वेक्टर्स का पंगा अपने को है नहीं, उसका डर अपने को तो है ही नहीं, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा देख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको हम I1 मान लेते हैं इसका, तो कितना होगा, m इज m/2, आपका जो h है इज l अपॉन √2 और इसका होल स्क्वायर और डाउन टू 6 अपने को जो है वो है ना, दैट इज गोना बी हाउ मच, m l स्क्वायर √2 स्क्वायर 2 हो जाएगा, 6 टाइम्स 4 24 हो गया बच्चों, है ना। Well, that's not the answer still, you know. That is the moment of inertia about this axis because of this half of the triangle. That means the moment of inertia because of the entire, both the triangles should be what? And that's going to be I, that should be 2 times of I dash. And eventually we're going to get what? Moment of inertia of this, about this axis, which is passing through a diagonal. तो बच्चों हो जाएगा 2 times of I dash, which is means ml square by 12। आपके ना रॉड को रिप्रेजेंट करता है, वो जो सेंटर से पास करता है। So now what I want you guys to do is, whichever figure shapes has the similar or same moment of inertia, you must put them together, एक साथ लिखो in a same column, and whichever has a different moment of inertia आप उसको अलग से लिखो। इतनी बात क्लियर है? चलो 2-3 बातें और मैं आपको फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड, स्फीयर और हॉलो शेल्स का बता देता हूं, आप उसको लिख लेना, ठीक है। There is no need to derive those things, उसको डेरिवेशंस करने का अपने को कोई जरूरत बच्चों है नहीं। अच्छा मान लो एक हमने क्या देख लिया था, 8 9 सॉलिड स्फीयर एक हो सकता है, और जो नेक्स्ट है बच्चों वो हो जाएगा हॉलो हेमिस्फीयर, और आप बोल सकते हो उसको स्फेरिकल शेल बोल सकते हो, दोनों सेम ही बात है, स्फेरिकल शेल, है ना। देखो एक सिंपल से लॉजिक आपको जो पता होना चाहिए, सॉलिड स्फीयर में ना मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक जगह मास है, ठीक है। इन हॉलो स्फीयर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द आउटर पेरिफेरल, ऑल गुड, radius being r over here as well। let's suppose the total mass is m बच्चों, और इसका भी टोटल मास हमने m ही मानकर रखा है। but in this case the moment of all the mass is distributed on the outer peripheral outer surface, इसका मतलब कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ज्यादा दूर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा होगा, दैट इज प्योर लॉजिक, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है ना जी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा, दैट यू कैन राइट एज 2/5 mr स्क्वायर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑब्वियसली इससे तो ज्यादा ही होगा, तो 2/3 mr स्क्वायर, याद करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको, ये सब लिख लो। Going forward, I'm going to talk about the moment of inertia of a few examples I will take in the next video of the moment of inertia when the mass is distributed unevenly, और mass का जो distribution है वो uniform नहीं है। And then we're going to discuss the two major important of this topic is going to be the parallel axis theorem and the perpendicular axis theorem. So the next video again is going to be as important as what we had today. So that's all for the day. I'm going to see you guys in the next video, and if you like the way I teach and the content, please do not forget to like, share and subscribe. All good bachcho? So see you in the next video. Till then keep studying and keep learning. Take care. Bye everyone.